नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू पॉलिटी प्रवाह, योर यून यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में ना हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड की न्यूरोलॉजिक आर्टरी है, द इंडिया ईरान रिलेशनशिप। अब आप पीएसआई आर एस्पिरेंट्स ध्यान से सुनो कि ईरान जो है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अनदर कंट्री ऑन द मैप, इट इज़ अ लेबोरेटरी where the India way is tested on every single day. You know, the recent geopolitical volatility from the Red Sea disruption to the 2026 escalations under the Operation Roaring Lion has made this partnership a high stake game of strategic balancing. Which operation? Operation Roaring Lion. ठीक है। देखो, भारत के लिए ईरान जो है वो एक गेटवे भी है और एक स्ट्रेटेजिक डिलेमा भी, एंड इट इज आवर ब्रिज टू सेंट्रल एशिया and the ultimate litmus test of our strategic autonomy. So, the Polity Prava roadmap to master this for your preparation, we will navigate the 5 dimensions. And what are those 5 dimensions? The first dimension is civilizational bedrock. देखो, we are moving from a shared Kantian identity to a modern real politic. हम एक शेयर्ड कांटियन आइडेंटिटी से रियल पॉलिटिक की तरफ मूव कर रहे हैं. देन सेकेंड डायमेंशन इज द थियोरिटिकल लेंसेज. where we will apply the Waltz, the Mearsheimer, and the Wendt to move beyond, general studies level summaries. And the third dimension is the connectivity as the strategy. Look, why Chabhar is the gatekeeper and INSTC is a digital public good. We will look into it. Then we will look for the fourth dimension is the Global South Bridge. The Global South Bridge. Look, India's tech democracy versus the China's creditor model. And the fifth dimension is the current affairs. Where we will analyze the West Asian crisis through the lens of why Bharat matters. Look, ancient tides, they provide us the Puranic depth. But modern India-Iran relationship, they are a master class in the real politic, where geography is permanent and interests are defining the power. So, civilizational bedrock is we have already covered in the previous lecture, the first lecture that I have provided to you in this particular YouTube channel. Understood? And the civilizational bedrock, if I talk about ना, तो पुरानिक डेप्थ एक आपकी अलग चीज़ थी एंशिएंट टाइज के अंदर. बट उसके बाद में जो मॉडर्न इंडियन रिलेशनशिप थे उनके अंदर हमने बात करी कि वो रियल पॉलिटिक की कैसे बात कर रहे हैं, कि जहाँ पे जोग्राफी परमानेंट है बट जो इंटरेस्ट है ना, दे वर डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ द पावर. सो this is what we need to cover in this particular thing, civilizational bedrock, when we deal in this small lecture. The important thing that we are going to cover is the theoretical lenses. देखो, you must use IR theories
if you want to really master class the particular subject, if you want to showcase your in-depth knowledge, then you must use the IR theories as the force multiplier. Look, bilateral relationships जो होते हैं, they are not just events, they are the patterns which were shaped by the systemic pressures. So if the first lens I took to explain you this particular thing, then the first lens that we are going to see is the realist lens. रियलिस्ट लेंस के थ्रू हम इसको देखेंगे, और रियलिस्ट लेंस के अंदर जो हम दो चीज देखेंगे वो होगी स्ट्रक्चरल एंड ऑफेंसिव. इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट हमें देखना है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा ऑफ द जर्विस. सिक्योरिटी डिलेमा, और इसमें जो हमारे थिंकर आएगा उसका हम नाम लेंगे जर्विस. ठीक है, देखो एक एक्शन रिएक्शन स्पाइरल हम लोगों ने पढ़ी. सो इंडियाज डिफेंसिव डेवलपमेंट ऑफ चाबार जो है ना, इट इज परसीव्ड एज एन ऑफेंसिव एक्शन बाय द पाकिस्तान चाइना एक्सिस, एंड विच विल ट्रिगरिंग द सीपैक काउंटर रिस्पॉन्सेज. दिस इज आवर सिक्योरिटी डिलेमा. देन व्हाट वी हैव टू लुक इज द बैलेंस ऑफ पावर, जिसमें आपके आ जाते हैं वॉल्ट्स, केनेथ वॉल्ट्स. इंडिया यूजेस ईरान टू बैलेंस द to balance against the encirclement. Look, just as realist logic predicted the Ukraine crisis, the NATO का expansion, so Iran's push for the regional space is a reaction to the US, Israel and the GCC security architecture. Then if you see it from the lens of the offensive realism, from the perspective of the offensive realism, जिसमें आपके आ जाते हैं मीरशाइमर. देखो, ईरान follows the Mearsheimer's 5 assumptions in an anarchic system, and it seeks the nuclear hegemony for the survival. Understood? Nuclear hegemony he is using for their survival. So India must maximize its own power to maintain its interest in the tragedy of the great power politics. अगर वहीं हम इसको लिबरल लेंस से देखें, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को. which was by Kehone and Nye, Joseph Nye. देखो, if I apply to this India-Iran relationship, so it will highlighting the multiple channels. And what are those multiple channels? We have discussed in the video of the impact of Iran crisis on India. So energy, trade, diaspora. Where military force is not the primary tool. And the economic ties, they have created the absolute gains. So complex interdependence. और अगर मैं इसको नियोलिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के लेंस से देखूं, तो यू विल सी कि रोल ऑफ ब्रिक्स एंड INSTC, ब्रिक्स एंड INSTC in reducing the transaction cost and enabling the cooperation despite systemic anarchy. और तीसरा लेंस अगर मैं इसमें लगाऊं, कंस्ट्रक्टिविस्ट का लेंस. देखो, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट. क्या है कॉन्सेप्ट? एनार्की इज व्हाट स्टेट
makes of it, and this was given by Alexander Wind. ये वेंट ने दिया. Now, if I apply to this India-Iran relationship, so India and Iran, they both view each other through an Kantian culture of friendship based on the civilizational norms, which is challenging the West's Lockean rivalry model. देखो, अगर मैं एक और इसमें एक चीज और बात करूं, जिसमें मैं बात करूं सैमुअल हंटिंगटन जो है, जो उनका व्यू है, और वो उन्होंने दिया अपने इसमें, बुक का नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. देखो, while the West argues or often views कि the Iran-Israel conflict through an civilizational perspective or lens, and what is that? That is Western versus Islamic. The lens is Western versus Islamic. Bharat views it through the developmental interdependence lens. वेस्ट उसको देख रहा है किस लेंस से? वेस्ट वर्सेस इस्लामिक. इंडिया उसको देख रहा है किस लेंस से? अ डेवलपमेंट एंड अ इंटरडिपेंडेंस लेंस. एंड दिस इज वेयर द इंडिया वे इट डाइवर्जेस फ्रॉम द वेस्टर्न नैरेटिव्स. और सिमिलरली अगर मैं एक और चीज की बात करूं, हेंस मॉर्गेनथाउ की अगर मैं बात करता हूं, what he says कि national interest is defined in terms of power, and I defined in terms of power. Look, morality cannot override the national survival. This is what he said. Morality cannot override national survival. देखो, realism जो है ना, वो सिर्फ बुक्स में नहीं है. If you look at the Red Sea cable disruption, so that is material power affecting your interest through internet. So India's engagement with Iran, despite the Western pressure, it is the ultimate proof of the Morgenthau's logic. कि national interest is defined in terms of power and morality cannot override the national survival. तो जब भी बात आएगी मोरालिटी और नेशनल सर्वाइवल की या नेशनल इंटरेस्ट की, तो हमेशा किसको ऊपर रखोगे आप? एनआई को ऊपर रखोगे, नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखोगे. अब हम आते हैं चाबहार और आईएनएसटीसी वाले पिलर पे. किस पे? दी चाबहार इन दी थर्ड डायमेंशन. देखो, कनेक्टिविटी जो है, इट इज द न्यू करेंसी ऑफ पावर. कनेक्टिविटी अब हम सब मानते हैं कि इट इज द न्यू करेंसी ऑफ द पावर. फॉर इंडिया, bypassing the western or the northern bottlenecks which were created by the hostile neighbors, it is essential for our strategic autonomy. Do you agree with that? So here comes in the picture the Chabahar port. Look, Chabahar isn't just a port. It is an geopolitical counter move. क्या है ये? जियोपॉलिटिकल काउंटर मूव है. कैसे है? सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक एक्सेस. strategic access. Look, it neutralized the Pakistani veto on the Indian land access to Afghanistan and Central Asia. कर लो veto, क्या फर्क पड़ रहा है? That is why Chabahar is important for us. And then the competitive landscape. क्या है? Competitive landscape. देखो, unlike the debt heavy BRI model at the Gwadar, चाइना की बात कर रहे हैं हम लोग ना. सो इंडियाज अप्रोच वो कैसी है? इट इज
a approach of a partner and not a creditor. We are behaving like, or we are communicating as partners and not as creditors. So, but however, we must acknowledge the security dilemma. We must acknowledge the security dilemma. As every Indian crane in the Chabahar is viewed by Beijing as a threat to their CPEC, the China-Pakistan Economic Corridor. So this is the importance, the geopolitical importance as the counter move of the Chabahar for India. Now, if I see INSTC, where we have used the trade as a digital public good. डिजिटल पब्लिक गुड. देखो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है INSTC, it is now being envisioned as a digital public good by integrating the transparent inclusive infrastructure where India offers the global south a way to trade without infringing on their territorial and the digital sovereignty. कितना बड़ा ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है ना भाई. हम INSTC के थ्रू क्या कर रहे हैं? बाय प्रोवाइडिंग अ डिजिटल पब्लिक गुड, कि वी आर इंटीग्रेटिंग अ ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे हम ग्लोबल साउथ को क्या दे रहे हैं? अ वे टू ट्रेड without infringing or without compromising on their territorial and the digital sovereignty. Now, if I come to the fourth dimension, where we have seen India as a bridge. India as a bridge. देखो, India's role as the voice of the global south. You must all know there is a Voice of Global South Summit has been happened in 2023, and it involves in tech democracy model. In this particular summit, we talked about a tech democracy model, where we aren't just giving loans, we are giving some sovereign digital rails. लोन्स नहीं दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. जस्ट अ सेकेंड गाइस. या सो we were seeing India as a bridge, where as a voice of the global south, in the tech democracy model, we aren't providing just loans, we are providing a sovereign डिजिटल रेल्स. देखो, अगर मैं इंडिया के अगर ब्रिज रोल की बात करूं, अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं आपको, इफ आई टॉक अबाउट द इंडियाज ब्रिज रोल, हम कैसे ब्रिज बन रहे हैं, और वर्सेस अगर मैं कंपेयर करूं चाइना का जो लीडरशिप क्लेम है उसको, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इंडिया की जो अप्रोच है वो है पार्टनर अप्रोच. कैसी अप्रोच है हमारी? पार्टनर अप्रोच है. हम एज पार्टनर काम करते हैं. पर वहीं अगर आप चाइना की अप्रोच देखोगे तो वो हेजिमनिक वाली अप्रोच है उनकी. वो अपनी हेजिमनी एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं. अगर मैं फाइनेंशियल मॉडल की बात करूं, दोनों के फाइनेंशियल मॉडल की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारा जो मॉडल है वो है कंसेशनल फाइनेंस एंड ITEC कैपेसिटी बिल्डिंग. कैसा है? हम कंसेशनल फाइनेंस करते हैं थ्रू द ITEC
कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। पर अगर चाइना को देखोगे आप कि उनका जो फाइनेंशियल मॉडल है तो वो है बीआरआई का, बीआरआई बेस्ड डेट फाइनेंसिंग मॉडल। हम कंसेशनल रेट्स के ऊपर इनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, चाइना डेट क्रिएट करता है। उसके बाद अगर मैं टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करूं, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया क्या कर रहा है? डिजिटल पब्लिक गुड्स, है ना, डिजिटल पब्लिक गुड्स, या फिर जिसको आप कह सकते हो कि इंडिया स्टेक जिसको हम कहते हैं ना, जिसमें आईडीज, पेमेंट्स, यूपीआई वगैरह जो हम यूज करते हैं, तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं? एज डिजिटल पब्लिक गुड्स। तो बेसिकली हम, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है? वी आर क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स। लेकिन चाइना वही क्या करता है टेक्नोलॉजी के नाम पे? वो हाई कॉस्ट प्रोपराइटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है, हाई कॉस्ट प्रोपराइटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है। वी आर प्रोवाइडिंग जो डे टू डे काम आए उनके, एज पब्लिक गुड उनके काम आए। उसके बाद अगर मैं डिप्लोमेसी की बात करूं दोनों लोगों की, कि डिप्लोमेसी कैसी है, तो इंडिया जो है वो लिसनर है, कोई लेक्चरर नहीं है। जैसे वैक्सीन मैत्री आप देखो, हमने लेक्चर थोड़ी दिया उनको, हमने उनकी चीजों को सुना, फिर उसके हिसाब से हमने अपनी चीजें उनको दी। तो वी आर एक्टिंग एज लिसनर्स, हम उनकी बातों को सुनते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और फिर हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ना कि हम लेक्चरर हैं। हम कोई लेक्चरर नहीं है। सो लिसनर एंड नॉट लेक्चरर। और इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप वैक्सीन मैत्री का। और अगर आप चाइना को देखो तो चाइना परसीव्ड द यूज ऑफ द साउथ फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक लेवरेज। वो उसको भी अपने हिसाब से यूज करता है। सो वो उसको अपने स्ट्रेटेजिक लेवरेज के लिए यूज करता है। तो उसको लगता है कि जहां उसको वो लेवरेज मिल सकता है वहां पर वो उनकी चीजें सुनता है या वो चीज करता है। वो वी आर नॉट डूइंग दैट। हम उनके एक्चुअल रियल प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और फिर उसके हिसाब से हम उसका चीज का अपना जो है अपना फिर उसके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। और इसी के अंदर अगर मैं ब्रिक्स फैक्टर को यूज कर ले लूं, इसी के साथ ब्रिक्स फैक्टर अगर मैं इंक्लूड कर लूं, तो देखो जो हमने इंक्लूजन किया है ईरान का एज ब्रिक्स प्लस, भाई ब्रिक्स को हमने क्या बना दिया? ब्रिक्स प्लस। इसमें काफी सारी और कंट्रीज आ गई अदर देन ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा। सो ईरान को जब हम लेकर के आए ब्रिक्स प्लस में, एज यू नो it is considered as a diplomatic win for the Delhi, as it prevents the bloc from drifting of the Iran into a purely anti-West, pro-China posture. वो ब्रिक्स प्लस को कौन सी इमेज देके चला गया? कंप्लीटली कि ये एंटी वेस्ट, मतलब एक पहले आप बात कर रहे थे एंटी वेस्ट की और प्रो चाइना पोस्चर की, उसको हमने चेंज करा। एंड इंडिया एंश्योर्स कि जो ब्रिक्स प्लस, it remains an pragmatic platform for the fairer finance while maintaining ties with the north. So we have balanced the north and the south, वेस्ट और सबको हमने इसके अंदर बैलेंस कर लिया। हमने एंटी वेस्ट इमेज भी पोस्चर नहीं होने दी हमारी, और उसी के साथ साथ हमने प्रो चाइना जो नैरेटिव था या जो पोस्चर था उसको भी हमने ड्रिफ्ट कर दिया या दूर कर दिया उसको हमने। अब आप देखो इसको करंट के एंगल से, करंट वाले इश्यूज के एंगल से। सो अगर हम करंट अफेयर्स के डायमेंशंस की बात करते हैं, जो 2024 से लेकर 2026 के बीच में जो टेंशन्स हुई और जो इशू आया कि वाई भारत मैटर्स, तो यू मस्ट लिसन दिस पर्टिकुलर थिंग केयरफुली। देखो, भारत डिप्लोमेटिक स्टांस इज नो लॉन्गर वन ऑफ दैट पैसिव न्यूट्रलिटी।
हम लोग एक पैसिव न्यूट्रलिटी की अप्रोच रखते थे. एंड दिस इज व्हाट डॉक्टर एस जयशंकर हैज आर्ग्यूड इन हिज बुक द व्हाई भारत मैटर्स, that we are in the era of strategies for an uncertain world. क्या दिया उन्होंने जयशंकर साहब ने? Strategies for an uncertain world. पैसिव न्यूट्रलिटी से हम किस पे आ गए? स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड. सो नाउ अनसर्टन वर्ल्ड के हिसाब से हम हमारी स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर, उस हिसाब से हम हमारी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे. अब अगर मैं करंट डिलेमास की बात करूं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं वेस्ट एशिया क्राइसिस की बात करूं, इसकी बात करूं वेस्ट एशिया क्राइसिस की. देखो, इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं जो यूएस, इजराइल और ईरान का एस्केलेशन हुआ है. तो जो 2026 के अंदर जो ये हुआ, whatever updates has been happened under the operation roaring lion, it shows कि यार डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दे विल थ्रेटन द इनडिविजिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी. क्या क्या थ्रेटन करते हैं ये? इनडिविजिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी. indivisibility of security. And India's increased maritime security operations in the Arabian Sea are a response to these structural pressures. So these structural pressure that has been put on us, so our maritime exercises or security operations in the Arabian Sea are response to these particular things. फिर उसके बाद में ये जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके बाद में जो ये रेड सी केबल डिसरप्शन वाला इशू हुआ, रेड सी केबल ऑपरेशन, देखो, इट इज एन हाई यील्डिंग पॉइंट. फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शंस हैं, दे आर द न्यू फ्रंट लाइन ऑफ द आईआर. एंड इंडियाज रिस्पॉन्स शोज कि यार वी आर नाउ एन सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन अवर एक्सटेंडेड नेबरहुड. जिसकी बात करा करते थे कौन? आपके जनरल बिपिन रावत, वेयर ही सजेस्ट टू पोर्ट्रेट इंडिया एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन. तो अब ये जो नई फ्रंट लाइंस क्रिएट हो रही हैं, जो फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो रही हैं, फ्रंट लाइंस क्रिएट हो रही हैं आईआर के अंदर, जहां पे आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने की बात करते हो, तो आर रिस्पॉन्स इज कि वी आर नाउ एन सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द एक्सटेंडेड नेबरहुड. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी. और उसके बाद में आप ये देखो, जो एक और इशू क्रिएट हुआ था साहिल और सूडान वार्निंग का. आई होप सो यू ऑल आर करंट अपडेटेड. देखो, जो इंस्टेबिलिटी हुई इन अफ्रीका, इट इज एन वार्निंग फॉर द वेस्ट एशिया कि इफ गवर्नेंस फ्रेगमेंट इन ईरान like it has been in the Sahel, so India's extended neighborhood strategy will face the total collapse. उस तरह की सिचुएशन अगर इधर आ जाए तो it will see a total collapse. So India advocated for regional stability because why? Our energy security will is depend on the absence of military takeovers. It doesn't matter. अब देखो, ये जो थे ये बड़े बड़े इश्यूज थे जिसको हमने बड़ा ही शॉर्ट में कवर करा फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आई नो कि मैंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया. आई हैव जस्ट मेंशन यू दी थिंग्स एज इन, बट लाइक मियर शाइमर और कंस्ट्रक्टिविस्ट अलेक्जेंडर वॉन्ट और इन सब आई हैवंट एक्सप्लेन यू. रीज़न बीइंग कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, दी PSIR की क्लासेस, तो यूनिट वाइज जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं, तो जल्दी ही हम लोग उस पर्टिकुलर यूनिट पे भी आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस की पे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पे भी, जहां पे हम इन चीज़ों को बड़ा ही डिटेल में समझेंगे, है ना, लेक्चर बाय लेक्चर.
तो कुछ चीजें हैं जो मैं अब चाहता हूं आपको एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, कुछ ग्लॉसरीज हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझ में आनी, जो हमें याद रखनी है, हमें एग्जाम में यूज करनी है इन चीजों को। हम जब अब बात करेंगे इन इश्यूज के बारे में तो इन टर्मिनोलॉजीज को हम अपने डिस्कशन में यूज करें। जैसे सबसे पहले तो देखो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्या मतलब है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इसका मतलब है परसुइंग योर इंटरेस्ट विदाउट कैंप पॉलिटिक्स। किसी भी कैंप पॉलिटिक्स में पड़े बिना जो आपके इंटरेस्ट है उनको परस्यू करो। एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा बार बार, डी हाइफनेशन। कौन सा? डी हाइफनेशन। इसका मतलब क्या है? देखो ये यूज करा जाता है, इसको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। डीलिंग विद द ईरान एंड द इजराइल ऑन सेपरेट मेरिट बेस्ड ट्रैक्स। आप डील करो ईरान के साथ भी, इजराइल के साथ भी, बट सेपरेटली। किस बेसिस पे? मेरिट बेस्ड ट्रैक्स पे। उनके हिसाब से मत चलो, आपके इश्यूज के लिए देखो कि क्या मेरिट हो सकती है बात करने की। उन मेरिट्स को आप अपना बेस बनाओ, उस ट्रैक को आप जनरेट करो और वे उस ट्रैक के हिसाब से आप दोनों के साथ बातचीत करो। दिस इज द पॉलिसी ऑफ डीहाइफनेशन, जिसको हम प्राइमरीली पहले यूज करा करते थे बड़ा ही इंपॉर्टेंटली जब हम इजराइल और पैलेस्तीन पढ़ते थे। इंडिया जो है इजराइल और पैलेस्तीन के इशू में भी डीहाइफनेशन की पॉलिसी को ही फॉलो करता है, हम किसी कैंप में थोड़ी हैं। उसके बाद में हमने एक और वर्ड पढ़ा था, इनडिविजिबिलिटी। इनडिविजिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। इसका क्या मतलब? देखो, वन स्टेट सिक्योरिटी इट कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ द अनदर। मेरी सिक्योरिटी इट कैन नॉट बी इंश्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर सिक्योरिटीज कॉस्ट। समझ गए होंगे आप सब। उसके बाद हम एक और वर्ड पढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंट। सॉरी, स्ट्रेटेजिक restraint. India's refusal to be drawn into the action reaction chain or the spiral of the West. ये एग्जाम्पल है स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का। वो जो एक्शन रिएक्शन वाली चेन चल रही है ना उनकी, उसके अंदर जो हमारा रिफ्यूजल है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ योर दिस एक्शन रिएक्शन का स्पाइरल, ये जो ये आप चलाते रहते हो, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इट। अब ऑन दी कंक्लूडिंग नोट, देखो जो इंडिया ईरान रिलेशनशिप है ना, इट इज नॉट अ चॉइस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। इट इज द रियलाइजेशन ऑफ योर विकसित भारत 2047 प्लान। वी आर अ नेशन दैट कैन लीड द ग्लोबल साउथ, engage the north and secure our interest in an anarchic world. So remember, as in the words of the Hans Morgenthau, कि national interest is defined in terms of power. So India's power today lies in its role of stabilizing bridge. So keep interlinking, keep revisiting, like, share and subscribe, and follow Polity Prava for more such amazing content videos. So thank you very much for your patience. Jai Hind and thank you guys.